Hello everyone, welcome to DCC and I'm your tutor Miss Sadaf. Let's begin with today's lecture, and today we are going to start with standard 10th algebra, chapter number 5, that is probability. Okay, I have already covered 5.1, 5.2 and 5.3 in the previous lectures. So in this lecture we are just going to cover the last exercise, that is the practice set 5.4, and those who haven't seen that video, kindly go and check, subscribe it, so that you will get the update of all the practice set I am going to upload. Okay, first question, that is if two coins are tossed. Okay, so if two coins are tossed, find the probability of the following events. Now let's see what are the formula of finding the probability. Probability find करने का formula क्या है? First you have to remember that. See, this is the okay. See, here it's given find the probability. So here firstly you have to find the probability with the formula. Once you remember the formula, it's very easy for you all to do the sums. Okay, so the formula is PU probability is equal to number of event, either it can be A, B or C, anything, number of event divided by number of sample space, which means the event will be divided by the total sample space. Okay, so this is the formula of probability. In the complete exercise of 5.4 you will be required this. Start solving the first question. If two coins are tossed, find the probability of the following event. So let's start solving. If two coins are tossed, इतने सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो इट शुड बी रिमेम्बर्ड. हम लोग को ऑलरेडी आ जाना चाहिए कि टू कॉइन्स अगर एक साथ टॉस्ड होते हैं, टू कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है. टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सैंपल स्पेस विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. Such an easy practice set. So you are going to cover whole marks. So number of sample space कितने आए? 1 2 3 4. ओके, ये हो गया हम लोग को जो क्वेश्चन बोला है. टू कॉइन्स हम लोग एक साथ टॉस कर रहे. सो दिस विल बी आवर आंसर. नाउ सी द इवेंट ए. द फर्स्ट वन इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो हम लोग इवेंट लिखेंगे. लेट ए बी द इवेंट. दिस यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम. ओके, लेट ए बी द इवेंट where you will get where getting no head, getting at least one head, sorry, getting at least one head. Okay, let A be the event of getting at least one head. Okay, तो हम लोग एक हेड मिनिमम हम लोग को रिक्वायर्ड है यहाँ पे. सो ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. एटलीस्ट मीन्स कम से कम. वी कैन ऑल्सो टेक टू, वी कैन ऑल्सो टेक टू. सो एच एच, लेट मी चेंज द कलर. एच एच, एच टी एन, टी एच, विच मीन्स head head, tail head and head tail. Okay, so these are our requirements of event A. Head head, tail head and head tail. Number of event कितने हुए? Therefore number of event A is 3. Now what they are asking for, ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग को क्या बोला? इतना हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 5.3 तक किए, isn't it? Now further we have to find the probability. So probability equals to probability of A.
probability of event A equals to number of A divided by number of S. number of A कितना है 3 and number of S यहाँ पे जो हम लोग ने sample space लिखे थे that is 4. तो probability कितना आया हमारा, probability of event A equals to 3/4. ठीक है, ये हो गया हम लोग का first one. Now see the second one. second question हम लोग से क्या पूछा है, गेटिंग नो हेड. सेकेंड में क्या बोला है, हम लोग को एक भी हेड नहीं चाहिए. तो ऐसा कौन सा है जिसमें हेड नहीं है, द ओनली वन, सॉरी, the only one probability in which we will not get any head. Okay, this is the probability TT. दोनों कॉइन्स पे क्या होगे, टेल होगे. How will write the answer? See, let write second one. Let B be the event of getting no head. No head. नो हेड ही बोला है ना, लेट्स चेक. या गेटिंग नो हेड. तो ऐसा एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसी एक ही पॉसिबिलिटीज है, विच मीन सैंपल स्पेस बी विल बी टेल एंड टेल. देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट बी का हमारा क्या आया 1. लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट एस. इजंट इट इजी? इजी है ना ये सब. एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे, यू आर बी एबल टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस. एक बार अच्छे से देखो, आगे का सॉल्व करो, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व इट. ओके, बट डोंट स्किप एनी स्टेप. एक भी स्टेप मिस करने पे आप लोग को आंसर्स नहीं आएंगे. ऑल्सो अगर आप लोग एक स्टेप स्किप करके आगे बढ़ोगे, विच मीन्स आप लोग के मार्क्स कटेंगे. You are still in school, my kids, so don't skip any step because these are getting marks. अगर आप लोग को आंसर्स नहीं भी आता है, बट आप लोग को वे मालूम है कि हाँ ठीक है किस स्टेप्स में करना है, so these are the scope where you will get the marks. Okay, these are our answers of probability event A and event B. एग्जाम्स में अगर दोनों का आप लोग को एक साथ पूछा है, सो राइट द आंसर हियर. आंसर probability of event A equals to 3/4 and the probability of event B equals to 1/4. That's it. इसको डिवाइड नहीं करना आप लोग को, कुछ नहीं करना. इट्स वेरी सिंपल. मेक इट सिंपल एंड स्कोर मोर मार्क्स. ओके, लेट्स गो ऑन. Second question, if 2 dice are rolled simultaneously. ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला है, जितने भी जो चीज की प्रोबेबिलिटीज है, लाइक 1 coin, 2 coin, 3 coins, तीनों कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी, डाइस 1 एंड डाइस 2, ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व इज बेस्ड ऑन दीज. ओके, ये सब पे ही बेस्ड होगे. अगेन वी आर गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ 2 डाइस. ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में देखो आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा ही 2 डाइस का. सो इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले हम लोग 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. 2 डाइस का सैंपल स्पेस बनाएंगे. 2 डाइस का क्या होगा, सैंपल स्पेस. अगेन इन दिस प्रैक्टिस सेट आई एम नॉट गोइंग टू narrate each and everything. I'll just start solving because आप लोग अभी बहुत आगे आ चुके हो. ठीक है, बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोग देखो तो ये समझ में आएगा. Now don't expect me to solve and narrate all this. फटाफट से पहले की वीडियोस आप लोग जाके चेक करो कि मैम ने ये कैसे किया. ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6
इफ आई गो स्लो विच मीन्स आप लोग के ये सारे लेक्चर्स भी क्या हो जाएंगे, बोर होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फास्ट जाना पड़ेगा, फटाफट से सॉल्व करते हैं। 2 2 4 2 5 2 एंड 6 2 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। इसमें गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करना। अगर आप लोग की एक मिस्टेक, वन सिली मिस्टेक विच मीन्स होल आंसर इज रॉन्ग, आप लोग के 4-5 मार्क्स के आंसर ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। सो ध्यान से सॉल्व करो। लुक, let me check if I'm not doing anything wrong, ठीक है। keep an eye on that also. I'll make sure to solve in a way like you are going to do, in a very quick way, ठीक है। 2 6 3 6 4 6 5 6 and 6 6, ओके। इसको ब्रैकेट आप लोग डाल सकते हो। इफ ब्रैकेट डालोगे इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर, इफ नॉट देन ऑल्सो इट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप लोग के दो लाइन में एक प्रॉपर मेंटेन गैप हो। बट इट्स बेटर टू कीप it's better to make it bracket. Right now I'm just writing it thoroughly. So number of sample space कितने, 36। ये सारी चीजें आप लोग को काउंट करने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी बाय हार्ट बाय यू। अब देखो इवेंट क्या बोला है, ठीक है। हाँ, दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू ऑल। द फर्स्ट वन इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट कम से कम 10 होना चाहिए, ठीक है। एज आई से एटलीस्ट ध्यान दो, सो इन द सेम वे इट इज एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। ऑल द टाइम मुझे ये आप लोग को बताना नहीं पड़े। नाउ यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो बी अ ग्रोन अप किड, एटलीस्ट 10, ठीक है। दोनों को ऐड करके ही हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में करे, दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। See, I'm taking the other color to make it mark. कौन कौन से, 6 + 6 12, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 6 4 10, 5 5 10 and 4 6 10, ठीक है। यहाँ पे लिखो let first one, let A be the event of getting at least 10, of getting sum of the digits be at least 10, ओके। A लिखो यहाँ पे, A इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस बनाओ, 4 6 5 5 ब्रैकेट बनाना यहाँ पे कंपल्सरी, और एल्स आप लोग के नंबर सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। 6 5 एंड 5 6। ऊपर मैंने नहीं बनाया बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा, so I skip that, but you have to write it in your exam, you have to make the bracket in your exams. Number of A कितना है, 1 2 3 4 5 and 6। easy है ना, even though it's easy I'm still solving it for you, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से एक एक चीज समझ में आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S, ठीक है, इक्वल्स टू
6 divided by 36, देन इसको थोड़ा सी कट छट करना है बिकॉज नंबर बड़ा है, राइट। 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 6 जा 36, so the answer will be 1/6. Probability of event A equals to 1/6. ठीक है। See the second question. The sum of the digits on the upper face is 33. दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 33. The sum of the digits on the upper face is 33. Why I am repeating it in a slow mode? Because हम लोग को मालूम है कोई भी 2 डिजिट ऐड करने के बाद मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? What are the maximum number we are getting here? Is 6, which means 6 plus 6 12 होता है। तो कोई भी नंबर ऐड करके हम लोग को 33 मिल ही नहीं सकता है। There are no numbers. Okay. Sorry for problem. Yeah. Second, let B be the event of getting 33 by adding digits. ओके, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। सो ये आंसर विल बी, बी का सैंपल स्पेस होगा नल, बिकॉज there is the highest number, क्या पूछा पहले वो देखो क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट, because the maximum digits is 6 6, sorry, because the highest, not maximum, highest digit is 6 6 and their sum is 12. उन लोग का सम क्या हो रहा है? 12. Therefore there is no numbers having sum of 33. ठीक है, आया समझ में? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम लोग को सम करके क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए। ठीक है, which means the number of B will be, because the highest digit is 6 6 and the sum is 12, therefore there is no numbers having sum of 33. Therefore number of B क्या है हमारा? Number of B is 0. अब ये प्रोबेबिलिटी अच्छी है, लुक पे अटेंशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट एस, विच मीन्स 0/36। तो प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली क्या होगी? 0। ओके, मेक श्योर इसको 36 लिख के नहीं आना, डोंट मेक दैट मिस्टेक। आया समझ में इतना? थर्ड वन देखते हैं। थर्ड क्या पूछा है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई।
क्या बोला है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई। ये दो डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट डाई है और ये सेकेंड डाइस है, द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड, विच मीन्स इसका नंबर बड़ा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है, अब ये 1 1 है, सेम हो गया। वी वांट ग्रेटर 1 2, ये 1 सब स्मॉल ही हो गए। वी वांट द एल्डर नंबर बिगर नंबर ऑन दी फर्स्ट डाइस, ग्रेटर नंबर चाहिए 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, देन 3 2, 3 is greater than 2 and 3 1 as 3 is greater than 1, और क्या 4 1 4 2 4 3। फटाफट देखो, फटाफट साथ साथ में सॉल्व भी करो। 5 1 5 2, एक बार अच्छे से समझ में आया, स्टार्ट सॉल्विंग, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग को ये चीज समझ में आएगी। नाउ सी 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5. Practice makes man perfect. So in that practice makes algebra perfect. Okay? जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग का अलजेब्रा उतना ही स्ट्रांग होगा। एंड अलजेब्रा बहुत ज्यादा इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई डोंट वांट एनी ऑफ माई स्टूडेंट टू लूज मार्क्स इन दिस। नहीं समझ में आएगा, योर कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। लेट मी नो कि आप लोग को क्या नहीं समझ में आया, एंड आई मेक श्योर टू सॉल्व इट अगेन। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ही आप लोग को नहीं आया एंड एग्जाम में कुछ भी करके आ रहा हो। सी थर्ड वन कहाँ गया, लेट C be the event of getting C be the event of getting greater number ये आप लोग को पूरे सेंटेंस में लिखना है। ओके, ऑन दी फर्स्ट डाइस। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाते हैं। सी का सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3। आप लोग ऊपर देखो, जिसको मैंने ब्लू में सर्कल करी हूँ वही मैं इधर लिख रही हूँ। ओके, 5 1 5 2 5 3। नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द होल PDF। जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेम एज इट इज PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। फॉलो माई चैनल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो सो दैट यू विल गेट ऑल द नोट्स देयर। 6 2 6 3 दैट्स इट। 2 1 कितने यहाँ पे ऊपर एक बार काउंट करो आप लोग। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर्स आना चाहिए, 15। ठीक है, से 15 है या नहीं है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 है ये। So here is our number of event C। number of event C क्या आया, 15। Now the final step we have to find the probability of event C, that means
नंबर ऑफ इवेंट C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट S. इतना इजी फॉर्मूला आप लोग को बस याद रखना है. 15 डिवाइडेड बाय 36, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा. Therefore probability of event C equals to 15 upon 36. 3 से डिवाइड होगा. 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 5 upon 12. ठीक है. Therefore number of probability of event C equals to 5 upon 12. आया समझ में अच्छे से? आंसर, फाइनल आंसर आप लोग को कैसे लिखना है देख लो. फर्स्ट क्या था आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C. इवेंट C है 5 upon 12, इवेंट B is 0 I think, एंड इवेंट A क्या था? 1 upon 6. ठीक है. That's it. आया समझ में आप लोग को? थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. My students, don't get bored because it is algebra and it is one of the most interesting subject. मेरा फेवरेट है and I want my students कि उनका भी फेवरेट हो. There are 15 tickets in a box. कितने टिकट्स है? 15 tickets, each bearing one of the number from 1 to 15. 1 से लेके 15 तक पूरे नंबर्स है. ठीक है. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं ना. बहुत सारी खिचड़ी, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया. सो डोंट वरी, हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं. 15 टिकट्स है. कितनी टिकट्स है? कितने हैं? सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. कितने हुए? इसको भी आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15. कितने नंबर्स हो गए? 15 हो गए. ठीक है. ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. हम लोग ने इससे पहले वाले में देखे थे 11 to 20. आई थिंक प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 में था. ठीक है. इस वजह से मैंने आप लोग को ये लिख के बताई हूँ. स्टार्ट सॉल्विंग. 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग 1 to 15. तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो गया हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है. देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बना हमारा? 15. See the event, find the probability of the event that the ticket is drawn. फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, पहले हम लोग लिख लेते. लेट ए बी द इवेंट शोज एन इवन नंबर. क्या चाहिए हम लोग को? इवन नंबर चाहिए. मैं ग्रीन में मार्क करती हूँ. इवन नंबर कौन कौन से? 2 4 6 8 10. 2 4, दैट्स इट. जो यूनिट पे 0 to 4 6 8 होगा वो क्या होगा? इवन नंबर. इतना सबको पता है ना? ओके. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. So here the sample space of event A equals to कौन कौन से नंबर्स है? 2 4 6 8. Yes my students, quickly. 2 4 6 8 10 12 14 16.
सॉरी 15 तक, ये 16 पे कहाँ जाना है. दैट्स इट. ओके, सो द नंबर ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. कितना आया? 7. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. ऑलवेज कीप इन माइंड, हम लोग को क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो जल्दी से. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. नंबर ऑफ इवेंट ए 7 डिवाइडेड बाय 15. देयरफॉर ये डिवाइड नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 7 अपॉन 15. दैट्स इट. बस इतना इजी है. आई होप मेरे स्टूडेंट्स लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. जिसने प्रैक्टिस सेट 1 से अभी तक देखा है उसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, अभी हम लोग आगे का देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखो. shows a number which is multiple of 5. सेकेंड क्या बोला है? shows a number which is multiple of 5. क्या चाहिए हम लोग को? 5 का मल्टीपल चाहिए. 5 के टेबल में आने वाला नंबर को बोलते हैं 5 का मल्टीपल. कौन कौन से? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15. इतना सिंपल था ये. चलो स्टार्ट करते लिखना. Second, let B be the event of getting. मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ हो रही है बट समझ में आना चाहिए. ओके आप लोग के. of getting multiple of 5. ठीक है. क्या B equals to 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 3 जा 15. therefore number of event B कितना आया? 3. प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B equals to 3 अपॉन, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स गया. 1 मार्क्स क्या टीचर के बस में आया, 2 मार्क्स काट लेंगे. ठीक है. नंबर ऑफ इवेंट भी फॉर्मूला इज मस्ट. डोंट फॉरगेट फॉर्मूला, नहीं तो लगेगा आप लोग ने रट के आए हो और इसकी वजह से आप लोग को मार्क्स कट जाएंगे. 3 अपॉन 15. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा 15. बच्चे लोग की तरह मुझे आप लोग को कराना पड़ रहा है. ओके, रुको 2 मिनट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. ठीक है. नाउ राइट द फाइनल आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या आया था? 7 अपॉन 15 and the probability of event B equals to 1 upon 5. ये तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग का क्वेश्चन आप लोग को आ गया. इतने इजी सम्स है ना, बहुत इजी है ना. माय डियर किड्स, डोंट से इट्स हार्ड. आप लोग अपने माइंड में भी नहीं बोलना कि ये हार्ड है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है. अलजेब्रा का सबसे इजी चैप्टर. See the question number 4. Okay, here I'll make one line. एक लाइन फॉर्म कर लेती हूँ.
ठीक है, देखो क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में. A two-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7 and 9 without repetition. वही क्वेश्चंस घूम के आ रहे हैं. 2, 3, 5, 7, 9 को हम 2 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग द नंबर. द नंबर्स आर कौन से नंबर्स है? 2, 3, 5, 7 एंड 9. इसके 2 डिजिट्स नंबर बनाते हैं. सैंपल स्पेस क्या होगा? 23. पहले 2 को सारे नंबर से ऐड करो. 2, 3 रिपीट नहीं होगा, 2, 2 नहीं आएगा. ओके, 2, 3, 2, 5, 2, 7 एंड 2, 9. देन 2 कंप्लीट हो गया. 3 पे आते हैं. 3, 2, 3, 3 नहीं होगा बिकॉज रिपीट नहीं करना है. 3, 5, 3, 7 एंड 3, 9. सीधा थर्ड भी हो गया. 5, 5, 2, 5, 3, 5, 7 skip 5, 5, 5, 7 then 5, 9. 5 भी कंप्लीट हो गया. 7th one 7, 2, 7, 3, 7, 5 skip 7, 7 then 7, 9. 7 भी कंप्लीट हो गया. क्या आया? 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, 7. That's it. Okay, कितने नंबर्स आए? कितने सैंपल स्पेस बने? Therefore number of sample space equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे? 20. ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑड नंबर. फर्स्ट में क्या बोला हम लोग को? क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. ठीक है, बी का क्या आएगा? सॉरी ए का इवेंट है ये. ए का इवेंट लिखते हैं ऑड नंबर. देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ रेड में. ऑड नंबर क्या होते हैं? 0 to 4, 6, 8 इवन होते हैं. बाकी के जो बच गए ऑड है. 23, 25, 27, 29, 32 नहीं इवन है ये. 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, then 93, 95, 97. I'm writing the odd number. 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, then 73, 75, 79, 93, 95 and 97. ये हो गए हमारे नंबर ऑफ इवेंट ए. ठीक है, काउंट करो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितना है नंबर ऑफ इवेंट ए? 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 16/20. 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16, 2 5 जा 20, 8/5. सॉरी
सॉरी 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, कुछ भी करवा रहे हो. 8 upon 10. सॉरी इट्स माई मिस्टेक. सो 2 8 जा 16, 2 का टेबल में देखो कितनी सिली मिस्टेक्स होती है. 2 के टेबल में मिस्टेक्स हो रही है. ओके सबसे होती है गलती. अब इंसान हूँ, गलती तो होगी. आप लोग नहीं करना आपके एग्जाम्स में. ओके आप लोग को ऐसी गलती नहीं करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 8 upon 10 भी जाएगा. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 upon 5. और एक मेथड है, आप लोग डायरेक्टली 16 upon 20 को 4 से सॉल्व कर सकते हो. 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. Four 4 जा 16 and 4 5 जा 20. Okay. Now see the probability. Event B. Event B क्या है? A multiple of 5. Again they are asking a multiple of 5. 5 के टेबल में आने वाले नंबर. यूनिट पे जिसका भी 5 होगा वो 5 का मल्टीपल है. 25, 35, देन 75 एंड 95. 25, 35, 75 एंड 95. लिखते हैं. सेकेंड वन, लेट बी be the event of getting multiple of 5. Okay, so B के events क्या क्या हो गए? 25, 35, 75 and 95. 4 ही है ना? Let me check. Yeah, 1 2 3 and 4. 4 numbers ही है. ठीक है. Therefore number of B कितना आया? 4. Probability of B equals to number of event B divided by number of event S equals to 4 divided by कितना था number of S? 20. 4 1 जा 4, 4 5 जा 21 upon 5. Therefore probability of event B equals to 1 upon 5. Write the final answer. Probability of event A equals to 4 upon 5 and the probability of event B equals to 1 upon 5. आया समझ में आप लोग के? बहुत ज़्यादा इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो. Quickly see the 5th question and this is the last question. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है. कहाँ चला गया क्वेश्चन? या देखो, ये कार्ड का एक ही लास्ट यही एक क्वेश्चन है जो अलग है, बाकी सब में सेम क्वेश्चंस है. अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. आप लोग ने पत्ते खेलो, पत्ते देखे होंगे. ठीक है, जो ताश के पत्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं. इसमें कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. एस स्पेड डायमंड. ओके,
चलो look here. Let's solve question number 5. ये last question है. Okay. Now see, a card is drawn. This is the only question based on card. जिसमें shuffled by 52 playing cards. कितने cards होते हैं? 52 cards होते हैं. आप लोग ने ताश के पत्ते देखे होंगे. अगर नहीं देखे होगे तो लेट मी टेल यू, जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. ओके, सो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 52. ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए हम लोग के? 52. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. एन एस क्या चाहिए हम लोग को? एन एस. लेट ए बी द इवेंट of getting an ace. ठीक है, एस चाहिए हम लोग को. नाउ सी, आप लोग को लिखना है देयर आर 4 सूट्स. कितने सूट्स होते हैं? सो 4 कौन कौन से होते हैं? स्पेड, हार्ट, डायमंड होता है, और क्या होता है? क्लब. ठीक है, ईच एंड एवरी सूट्स आर हैविंग एस. सब में क्या होता है? ईच सूट्स हैव एस कार्ड. सब में एस कार्ड होते हैं, विच मीन्स हमारा नंबर ऑफ इवेंट ए क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट ए हमारा हो जाएगा 4. कितना हो जाएगा? 4. नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट एस. 4 को डिवाइड करना है 52 से. 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12. मैं आप लोग को 2 से इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो. 2 डिवाइडेड बाय 26, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आया. यू कैन ऑल्सो सॉल्व. ये आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आप लोग को एग्जाम में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है. नाउ यू आर अ ग्रोन अप स्टूडेंट. और 4 divided by 52, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 4 3 12. ओके, क्या आया? 1/13. Therefore probability of event A क्या आया? 1/13. ठीक है, आया समझ में? See the second one. सॉरी, सेकेंड क्या दिया है? अ स्पेड. क्या चाहिए हम लोग को? अ स्पेड. मैंने ऑलरेडी बोला 4 सूट्स होते है ना. ये 4 सूट्स में से ऑलरेडी एक क्या है? स्पेड है. लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
spade. Okay, so there are 13 cards in the suit of spade. कितने होते हैं? 13 cards होते हैं. spade के उसमें कितने होते हैं? 13. So आप लोग को सेंटेंस लिखना है there are 13 cards in a suit of spade. एक सेट में 13 होते हैं. ठीक है, therefore नंबर ऑफ इवेंट भी कितना हो जाएगा? 13. सिंपल है, ये थोड़ा सी थियोरेटिकल है, आप लोग को कार्ड्स देखना पड़ेगा, और अगर आप लोग कार्ड्स नहीं देखते हो तो इसको याद कर लेना. कौन कौन से होते हैं? स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब. और हर सूट्स में एस कार्ड होता है. और स्पेड में कितने होते हैं? 13 होते हैं. अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट एस, विच मीन्स 13 अपॉन कितने टोटल कार्ड्स थे? 52. ठीक है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, विच मीन्स द आंसर इज 1/4. ठीक है, therefore द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है हमारा? 1/4. एक फाइनल आंसर लिखते हैं. लास्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 1/13 and the probability of event B equals to 1/4. That's it. ठीक है, इतना ही था. बहुत इजी था ये. पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 5.4 एक्सरसाइज तक. प्रैक्टिस एट 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 with the introduction have already uploaded. Go and check, सब्सक्राइब करो so that आने वाले जो भी आप लोग को मिल जाए. सब्सक्राइब करके रखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलो. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू लाइक माई वीडियो. ठीक है, लाइक करो सो दैट आई विल कम टू नो कि आप लोग को कितना समझ में आया. एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ कि आप लोग को कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, या आगे की आप लोग को कौन सी वीडियोस चाहिए. ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.